Let me guess, if you ask any of the CLAT aspirants about GK, they will have one of these responses. It is overwhelming, stress-inducing, most time-consuming for sure, and inherently since it is unpredictable, so we don't even know that if all the hard work is going to be worth it in the end. But what if I tell you that there is a way not just to overcome all of this, but to dominate this section? All you need is a practical, efficient and a sustainable plan. Stay in this video till the end and I'll help you figure that out. So let's start the video. Hi everyone, this is Vivek and welcome back to Legalite's official channel. This topic has been divided into three parts. The first part talks about the challenge of this section. The second part talks about why this section is relevant for your selection in the CLAT exam. And the third part is where we are going to discuss the plan, which we are going to discuss in the next video. For your convenience, all the chapters of these videos are time-stamped, making it easier for you to navigate. So without wasting any further time, let's begin with the challenge of this section. The problem begins when we fail to determine the relevancy of the content. Rather than using CLAT's past year paper and sample paper to determine the thematic framework of the GK questions, basically figuring out that how exactly CLAT chooses a question or CLAT chooses a detail which they are interested in, we rely on anyone and everyone for their suggestion. Add to this the overabundance of GK content available on the internet, plethora of toppers' suggestions and videos, and fear of missing out, and then begins the cycle of idiotic choice. Cycle of idiotic choices start होता है एक fictional character से, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं GK material hunter. Now this one guy, this भैया जी like figure, collects anything and everything possible regarding GK from the internet. So he scrolls over the internet and he tries to gather everything. GK Today, Affairs Cloud, Drishti, Vision, this coaching material, that coaching material. He collects everything, he puts that into one Telegram group and somehow he acts as a masiha. Now what you feel that he is going to solve your problem, and he has solved your problem because he has given you the access to all the content from each and everywhere. But this is where you are wrong. अब आप आ जाते हो फैजल वाले मोड में. अब आपको लगता है कि आपका फैजल सब पढ़ेगा, जीके टुडे, अफेयर्स क्लाउड, दृष्टि, ये कोचिंग वो कोचिंग, सबका मैराथन कंपेडियम सब कुछ पढ़ लेगा. बट प्रॉब्लम ये है फैजल बेटा कि सिर्फ एक कोर्स नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, 4 और सब्जेक्ट हैं और ऑब्वियसली हमारे पास 60 डेज से कम है. तो ऐसे कैसे? नाउ द प्रॉब्लम इज दैट दिस प्लान वाज डूम्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग. इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है या फिर आप इंटेलिजेंट कम है या फिर कोई और रीजन. अ सिंपल प्रॉब्लम इज दैट दिस प्लान वाज नॉट सस्टेनेबल एंड मोस्ट ऑफ यू फॉल फॉर दिस प्लान. सेकेंड चैलेंज जो इस सेक्शन का है वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं क्लासेस पे. हम लोग को लगता है कि हम लोग क्लासेस करके जीके कवर कर लेंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि कम से कम एक मंथ में जो रेलेवेंट टॉपिक्स, जो न्यू रेलेवेंट टॉपिक्स एक मंथ की जो बनती है वो कम से कम 100 टॉपिक्स हैं. अब आप इमेजिन करो कि 7 के 7 डेज आप जीके क्लासेस को अटेंड कर रहे हो और हर दिन ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 2 से 3 घंटे क्लास हो रहा है. फिर भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उतने डेप्थ में, जितने डेप्थ में ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करना है, उतना सारा कुछ कवर हो पाए जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है. तो क्लासेस में करना सस्टेनेबल नहीं है. और यूजुअली अगर आप देखेंगे कि क्लासेस में ये लोग पढ़ाते कैसे हैं, तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल रियलाइज कि these people keep chocolates and what they basically do, they ask you random questions and they throw the chocolates like this and like this to whosoever answers the question. But the problem is this is not going to solve the problem. Quizzing is a very good thing, but the problem is this plan is not practical because it is not practical for you to cover so many topics with the given number of days that are left for the exam in the classroom setting. It is not possible क्योंकि वहाँ सबका अलग अलग पेस होता है और ये खाने वाली चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है. बट अगेन दिस इज नॉट द रिवॉर्ड. अगर यही रिवॉर्ड होता तो भाई तुम अपने घर में पर का पूरा एक डब्बा खरीद के रख लो, भाई तुम जीके में 35 आउट ऑफ 35 लेके आ जाओगे. तो ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
अब थर्ड जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इनएफिशिएंट वर्क फ्लो या फिर इनएफिशिएंट सिस्टम। और जब मैं ये बोलता हूं तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल एक सोर्स समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसके बाद जब एक सोर्स से एक टॉपिक को उठाया तो उस टॉपिक को कंप्लीट कैसे करना है। अब उस टॉपिक को आप एक जगह से आपने प्रॉपर्ली ले लिया, उसके बाद आप उस पर नोट्स बना रहे हैं, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, मैगजीन को क्या कर रहे हैं आप। और यूजुअली व्हाट यू विल रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स डू व्हाट, they highlight a lot in the magazine and they end up realizing that they've highlighted almost the entire book. Or alternatively what you will realize that most of these students make notes. और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है, मतलब हैंड रिटन नोट्स में भी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स के बारे में, कि हैंड रिटन नोट्स बनाने का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्गेनाइज करना और उसको कहीं पे भी कैरी करना। ऑन दी अदर हैंड ई नोट्स बनाने का, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उस चीज़ को बनाएं, चाहे आप क्लोवर यूज़ करें, चाहे आप नोशन यूज़ करें, सबसे ईजी चीज़ ये हो जाता है कि उसको आप अपडेट टाइमली कर सकते हैं। अगर उसी टॉपिक के अंदर कोई नया डेवलपमेंट अगर हो गया तो बहुत इजी होता है नए किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी सोर्स को वहाँ पे देना। कोई क्वेश्चंस भी अगर वहाँ से है तो उसको आप कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। कोई न्यूज़ सोर्स है उसको भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ईजी है और सर्च करना भी काफ़ी ईजी है। और हाईलाइटिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हाईलाइटिंग करके आप आर्टिस्ट ही बन रहे हैं बेसिकली। क्योंकि आप कितना भी आप उसको पेंट कर ले, कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि देयर इज अ lot of content somewhere, whether you are relying on any magazine or something, again you have to summarize the content and make it consumable. आपको ultimately उस content को consumable बनाना है कि आप consume कर पाएं उस चीज को, right? और यही हम लोग नहीं करते हैं। और इस हमारे पुअर सिस्टम्स की वजह से और इनएफिशिएंट सिस्टम्स की वजह से और इनएफिशिएंट वर्क फ्लो की वजह से बहुत ही ज़्यादा बर्डनिंग फील होता है जीके का प्रिपरेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो फोर्थ प्रॉब्लम है इस सेक्शन का, दैट इज विथ रिगार्ड टू द एलोकेशन ऑफ टाइम। या नहीं तो हम लोग बहुत ही कम टाइम एलोकेट करते हैं जीके के प्रिपरेशन के लिए, या नहीं तो वी एंड अप एलोकेटिंग टू मच टाइम, या नहीं तो बच्चा सिर्फ जीके ही पढ़ाई कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि बाकी 4 सेक्शंस इफेक्ट हो रहा है, या नहीं तो वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहा है, लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, लॉजिकल प्रैक्टिस कर रहा है और इस सेक्शन को वो प्रॉपरली नेग्लेक्ट कर रहा है ये सोच के कि हम लास्ट के मंथ्स में इसको हम कर लेंगे। एंड देन ही रियलाइजेस कि लास्ट के मंथ में बिल्कुल नहीं हो पाएगा इस चीज को, क्योंकि सिर्फ इस हैबिट में आना कि आप एक प्रैक्टिकल तरीके से एक प्रैक्टिकल सोर्स को पकड़ के एफिशिएंटली सस्टेनेबल रूटीन के थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी ह्यूज टास्क एंड इस हैबिट को बनाने में टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली अगर पुअर एलोकेशन ऑफ टाइम है, अगर अपने प्रिपरेशन से आप सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे कि भाई कितना टाइम अप्रोप्रिएटली हमको एलोकेट करना चाहिए जीके वाले सेक्शन को, देन व्हाट विल हैपन दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर क्लैट स्कोर एंड योर क्लैट प्रिपरेशन, बिकॉज ईदर यू विल एंड अप devoting too much time on GK or you will end up devoting very less time on GK. Both of these practices are not productive or not fruitful for your CLAT score. Let's move on to the next problem and the biggest problem of all कि सर सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिए। अब सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि सबसे ज्यादा CLAT एस्पिरेंट्स रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि सब कुछ कर लिया, मास्टर कर लिया सारा स्ट्रेंथ की नहीं, चलो अब से आज से रूटीन बना लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम एलोकेशन सब कुछ डिसाइड कर लिया, सोर्स भी डिसाइड कर लिया, अब बस करना क्या है, पढ़ाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हम पढ़ना जब हम लोग स्टार्ट किए तो हम लोग क्या रियलाइज कर रहे हैं कि बैकलॉग भी है बहुत सारा ऑब्वियसली, या बैकलॉग नहीं भी है तो जीके का प्रिपरेशन किए। अब एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि चलो अगस्त के मंथ का या फिर सितंबर के मंथ का, किसी भी 1 या 2 मंथ का आपने प्रॉपरली जिस भी सोर्स पे आप रिलाई कर रहे हो उसको आपने थॉरली कंप्लीट कर दिया। नाउ एंड और कंप्लीट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे मॉक का स्कोर इंक्रीज हो, राइट। अब इमेजिन करो कि आप ये दोनों मंथ का कंप्लीट कर लिए हो और कंप्लीट करने के बाद आप कोई सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो या फिर आप कोई मॉक टेस्ट में अपेयर हो रहे हो या फिर क्लैट वालों ने कोई सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हो। नाउ व्हाट यू रियलाइज कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कि बहुत कम क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया, एक पैसेज जो था जीके का उसके 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। नाउ व्हाट विल हैपन कि दिस इज गोइंग टू डीमोटिवेट यू। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप डिस्पैशनेट हो जाएंगे इस सब्जेक्ट को लेके, इस सेक्शन को लेके। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मतलब कि कॉमनली आप देखेंगे ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कि इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल काफी अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शंस को मिला के वो अच्छा खासा स्कोर आउट ऑफ 100 जो तीनों सेक्शन का वेटेज है, दे आर एबल टू स्कोर 60 मार्क्स।
बट अगेन जीके पुअर होने की वजह से जो कॉलेज वो डिजर्व करते हैं, मतलब वो डिजर्व बहुत ही अच्छा कॉलेज करते हैं, फिर भी वहां पे जा नहीं पाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग प्रॉपरली बोले कि क्या टर्म देना चाहिए, जो कि हमको लगता है कि बहुत लोग ऑर्डिनरली किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को सुने होंगे, इस फ्रेज को सुने होंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ रिवॉर्ड। इसमें क्या होता है कि हम लोग को हर चीज तुरंत एफर्ट लगाया, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत एफर्ट चाहिए, तुरंत एफर्ट लगाया, तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब ये पॉसिबल नहीं है जीके में, क्योंकि आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन बना रहा है कि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है कि क्लैट कंसोर्टियम को आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट इज अवेलेबल, उसको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है और उस टॉपिक के अंदर कौन सा डिटेल इंपॉर्टेंट लग रहा है। And that is why we say that a score of around 20 to 25 is a very good score in GK when it comes to CLAT exam for CLAT aspirants. But again, mock का भी क्वेश्चन अगर आपके कोचिंग में कोई अगर बना रहे हैं या कहीं से भी अगर आप कोई जीके टेस्ट सीरीज या कुछ भी अगर आप लिए हो, तो वहां पे भी जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो लोग खुद से डिटरमाइन कर रहे हैं सब्जेक्टिवली कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का कौन सा डिटेल इंपॉर्टेंट है। Though they are following the thematic framework of the CLAT consortium, but again that differs broadly from the way that you are preparing for this exam, and that is why maybe it will take a lot of time for you to see some tangible result. अब tangible result के absence में आपको give up नहीं करना है, और बहुत सारे बच्चों का सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि वो give up करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि CLAT एग्जाम के लिए एक चीज, एक कौन सा ऐसा मंत्रा हो सकता है जिसको हम लोग फॉलो करें और क्लैट एग्जाम में गारंटी हो कि हम लोग एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पक्का मिल ही जाए, तो ऑल आई एम गोइंग टू से इज दैट जस्ट डोंट गिव अप। इफ यू डोंट गिव अप यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। बहुत ही सिंपल चीज है, और जीके वाले सेक्शन में ये वाली चीज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अब ये तो हो गई चैलेंजेस वाली बात। चैलेंजेस के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे इस एस्पेक्ट पे कि व्हाई इज दिस सेक्शन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन इन द क्लैट एग्जाम। नाउ द वेरी फर्स्ट रीजन इज दैट इमेजिन करो कि जो जीके सेक्शन है वो क्रिकेट के पावर प्ले की तरह है। अब क्रिकेट के पावर प्ले में क्या होता है कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होता है बॉलिंग टीम के साइड। अब इसलिए क्या हो जाता है कि इट इज ईजियर टू स्कोर इन द फर्स्ट 6 ओवर्स ऑफ दिस मैच, राइट। और अगर आप सोचो कि कोई भी टीम पहले 6 ओवर में काफी अच्छा अगर स्कोर करेगी और अपना विकेट लूज नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली आने वाले बैट्समैन ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आने वाले बैट्समैन ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे होंगे, और टीम का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पोजीशनड होगा टू विन दिस मैच। अब कॉन्ट्रास्टिकली अगर हम लोग एक दूसरा सिनेरियो अगर इमेजिन करें कि अगर कोई टीम फर्स्ट 6 ओवर में फेल की इस फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के बेनिफिट को लेवरेज करने में, और आप रियलाइज करते हैं कि बहुत सारा विकेट भी लूज हो गया, तो अब क्या होगा कि अब जितने भी अपकमिंग बैट्समैन होंगे उनके ऊपर भी काफी ओवरवेलमिंग प्रेशर होगा। सेम इज द केस विद जीके। जीके में कितना है, 35 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर आएंगे, अब आप सोच के देखो ना कि इनको सॉल्व करना सबसे कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। आउट ऑफ ऑल द सेक्शंस दैट इज अवेलेबल टू यू, the minimum time you are going to take is in this section. So obviously अगर यहाँ पे अगर आपका स्कोर अगर अच्छा रहा, डिसेंट रहा, 20 से लेके 22 के बीच में अगर आपका स्कोर रहा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी ईजियर। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि जीके सेक्शन इज गोइंग टू डिसाइड योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन अदर सेक्शंस टू फॉलो, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट द मोमेंटम फॉर द एग्जाम। क्योंकि जीके से एक बार जो मोमेंटम सेट हुआ कि हाँ मैंने पहले से प्लान किया था, कोई ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं था, एकदम एक प्रूडेंट और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या था कि आई एम गोइंग टू स्कोर बिटवीन 18 to 22, right, on an average. If I score more, that is a very good thing, but on an average I am going to score between 18 and 22, and if I know for sure that this whole plan is done and I am going to score between 18 to 22, now this will set the momentum for the upcoming sections that you are going to follow. And think about it कि अगर जीके अच्छा नहीं है, जीके में you were anticipating to score somewhere between 18 to 22, and what you realize that you end up scoring somewhere around 10, 11, and again you are taking flukes and you are not very sure about this very fact these answers are going to be actually correct, then what will happen that you will be under pressure and impulsively you will be making a lot of decisions. And the problem is that this is a comprehension based section. कितना अटेम्प्ट करते हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि भाई कितने क्वेश्चंस एक्यूरेट हुए, एक्यूरेसी कितनी थी। और इसीलिए क्या हो जाए कि एक बार जो जीके वाले सेक्शन से जो इंपल्सिव आंसर चॉइसेस को मार्क करने का जो एक पैटर्न स्टार्ट हुआ, इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, और आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। एंड दैट इज वाई
व्हाट आई एम सेइंग कि दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस सेक्शन को अगर आप सही से अगर एस कर लिए, दिस इज गोइंग टू सेट द मोमेंटम फॉर ऑल द अदर सेक्शंस दैट आर गोइंग टू कम इन योर क्लैट पेपर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. क्लैट 2022 के कल्मिनेशन के बाद हमने एक छोटा सा सर्वे कराया, एक बहुत ही स्मॉल सैंपल सेट पे, अराउंड 2800 स्टूडेंट्स, नॉट फ्रॉम वन जियोग्राफिकल टेरिटरी बट फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया. एंड द थिंग वाज कि हमारा पर्पस क्या था इस सर्वे को कराने का, बस इस चीज़ को डिटरमाइन करना कि कौन सा एक सेक्शन ऐसा है जिस सेक्शन में अगर आप ज़्यादा स्कोर करते हो तो इट इज को रिलेटेड टू योर क्लैट स्कोर. सो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड द को रिलेशन बिटवीन दिस वन सेक्शन विच डिटरमाइंस your selection in a national law university. And trust me, the results were very much surprising. हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होगा, और हमारा एक पहले से एक हाइपोथेसिस ये था ना कि शायद वो सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग होगा जिसके स्कोर पे आपके टोटल स्कोर का कोरिलेशन होगा, कि अगर ये दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब ये है कि अगर इस सेक्शन में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो क्लैट का स्कोर भी अच्छा है, इस सेक्शन में अगर आपका स्कोर एवरेज है तो क्लैट का स्कोर भी एवरेज है, और इस सेक्शन में अगर आपका स्कोर लो है तो क्लैट में भी आपका मार्क्स लो है. एंड द सर्वे विच वाज कंडक्टेड फॉर 2800 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सिमेटली, द रिजल्ट वाज कि द सेक्शन ऑन विच your CLAT score hinges the most is GK. And trust me, the results and the statistics were very much surprising. Now, 90% of the times when you score between 20 to 22, you have a guaranteed selection into a national law university. 63% of the times when you score 20 to 22 in GK, you get into top 7 national law university. 42% times when you score between 20 to 22 in GK section, you get into top 3 national law university. And trust me, this is the most surprising one, that stark 60% of the times when you score between 18 to 22 in GK section, you get more than 65 in the CLAT exam. And approx at 65, most of the students do get selected. Maybe not in the very first list, but until the last list and until the vacant list, you definitely will get selected at the score of 65 in most of the cases, right? And that was, trust me, very much surprising for all of us, that how much our ultimate CLAT score hinges on this one unpredictable section, that is GK. Now let's move on to the next one. And now you will all say कि सर कैसे भाई GK सेक्शन पे क्लैट का स्कोर कैसे हिंज कर सकता है. Now practically I have only one explanation that I could think of, and that is कि जब आप GK आपका काफ़ी अच्छा होता है, इसका मतलब क्या है कि आप रिसर्च काफ़ी करना पड़ता है आपको, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा लिटरेचर कंज्यूम करते हैं, और डिफरेंट वेबसाइट से आप कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट सोर्स से आप कंज्यूम करते हैं सिर्फ एक टॉपिक के लिए. तो क्या होता है कि इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग एंड स्टडिंग फॉर GK, unintentionally you are consuming a lot of English, you are doing a lot of reading, and that improves your reading comprehension as well, because also to just summarize all the content and make it consumable, you are properly writing it out there, right? So ultimately what is happening? Ultimately this could be the only explanation why this section decides your CLAT score, because you're doing a lot of reading, a hell lot of reading. Now move on to the next one. The final reason is that failing in GK section is literally inexcusable. Why it is inexcusable? That I see most of the times students have an excuse for not doing so well in English, legal and logical, all these comprehension based sections. जैसे कि चलो हमारा अपब्रिंगिंग अच्छा नहीं हुआ, हमारा क्लास 5-6 से इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश में, we did not used to read novels and newspapers, हमारा एक इंट्रिंसिक इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ों में, अपब्रिंगिंग सही से नहीं हुआ, स्कूलिंग सही से नहीं हुआ, स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मुझे सेंटेंसेस का मीनिंग समझ में नहीं आता है. तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. सिमिलरली मैथ्स के लिए भी बहुत सारा रीजन है कि लोग बोलते हैं कि मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, मैथ्स में मैं शुरू से काफ़ी वीक था. तो यहाँ पे रीज़न है हमारे पास, लेकिन जीके में क्या ही रीज़न होगा. जीके इज ऑल अबाउट व्हाट? GK is all about research, read, review, recall. Let me repeat that again.
रिसर्च, रीड, रिव्यू, रिकॉल। बस ये 4 स्टेप है और ये 4 स्टेप भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। यहां पे सिंपल सा यही बात है कि आप इसमें अच्छे नहीं हैं, मतलब कि आप लेजी हैं, आप प्रॉपरली एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आप एफर्ट लगाएं, आप रिसर्च करें, आप रीड करें, आप रिव्यू करें और रिकॉल करें। रिकॉल कैसे करें? टेस्ट के थ्रू करें, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो या खुद से आप करें, किसी भी तरीके से करें, एक दूसरे में क्विजिंग कर रहे हैं आप इस चीज को, राइट? लेकिन बहुत ही ईजी है, इसलिए मतलब इस सब्जेक्ट में या इस सेक्शन में फेल करना इनएक्सक्यूजेबल है। दिस इज ऑल वी हैव for this video. As we told you at the beginning of this video that this topic was divided into 3 parts. The first 2 parts we were going to cover in this video, and the third part, the plan part, we are going to discuss in the next video. Don't miss the next video, because in the next video under the plan we are going to talk about 3 things. What exactly and how exactly should be your plan, and the plan has to be practical, efficient and sustainable. Practical with respect to the source, efficient with respect to the workflow and the system, and sustainable with respect to the allocation of time and the routine that you develop around GK section. So please watch the next video. Thank you so much for watching this video till the end. I am really grateful for anybody who made it to the end. If our videos add value to your CLAT prep, please like our video, subscribe our channel and share our videos among other CLAT aspirants, and see you all in the next video. Thank you everyone. Thank you very much.